Hello students, I am Neil sir and today I am going to continue with sentences. Yesterday we learned that what are sentences. When we put words in proper places and they sound a proper meaning, that is what we call a sentence. Alright? Now today we are going to learn the three kinds of sentences. Yesterday I taught you about full stop. We use a full stop to end a sentence. We use a question mark to ask something, and we use an exclamation mark when we are excited. When we exhibit excitement, happiness in our sentence, we use exclamation mark. Alright? So, today I am gonna show you the three parts of sentences, the three kinds of sentences. So, the first is statement. A statement. Alright? First is the statement. Second is the question. Second is the question. And third is the command or request. So these are the three kinds of sentences. First is the statement. Second is the question, and third is the command or request. Alright? Now, we are moving further. Now I will explain what a statement is. Alright? So I am rubbing this off. The three kinds of sentences are the statement, question, and the command or request. So we are gonna go with the first one, statement. Statement. Alright? When we use this word statement, it means it states something. ये कुछ बोल रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ जो कंफर्म है, जो ऑलरेडी हाँ है, ठीक है? स्ट्रेस होता है, एक पॉजिटिविटी रहता है, एक एफर्मेटिव जो है वो दिखता है ये स्टेटमेंट में. So let us go with some examples so that will help you understand. First, he is a short boy. Full stop. He is a short boy. They are a happy family. Full stop. See, in each of these sentences, he is a short boy. ये कंफर्म है कि ये लड़का शॉर्ट है, छोटा है. And I am using a full stop at the end of the sentence. They are a happy family. Full stop. मतलब वो लोग एक खुशहाल परिवार है. And I am using a full stop at the end of the sentence. Third, they are going
picnic. Alright, they are going to picnic. So इसमें भी एक तो एफर्मेटिव है, कहाँ जा रहे हैं वो लोग? पिकनिक में, एकदम श्योर शॉट पिकनिक में ही जा रहे हैं. फाइन, आप लोगों को तो पिकनिक पसंद है. विंटर सीजन आएगा तो आप लोग शायद फैमिली के साथ सभी मिलकर पिकनिक जाएंगे, तो तब आप लोग कहेंगे वी आर गोइंग टू अ पिकनिक. ठीक है. सो स्टेटमेंट क्या है? देखो, इन सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ एफर्मेटिव है, कुछ ना कुछ श्योर है. जैसे ही इज अ शॉर्ट बॉय. ही के बारे में अगर कोई पूछता है कि वो उसका हाइट कैसा है, ही इज अ शॉर्ट बॉय. दे आर अ हैप्पी फैमिली. वो लोग कैसे परिवार है? वो लोग खुशहाल परिवार है. दे आर अ हैप्पी फैमिली. 3, दे आर गोइंग टू पिकनिक. कहां जा रहे हैं वो लोग? दे आर गोइंग टू पिकनिक. फुल स्टॉप. सो those sentences which states something, ठीक है, और confirms something is called a statement. जो sentences में कुछ affirmative होता है, surety होता है, confirmation होता है, उसी को हम लोग एक statement कहते हैं. एक statement usually फुल स्टॉप से एंड होता है, खत्म होता है. ठीक है. तो ये रहा हम लोग का पहला पार्ट, स्टेटमेंट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग. व्हाट डिड आई से फॉर द सेकेंड थिंग? क्वेश्चन. क्वेश्चन को आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? सवाल. ठीक है. सो वी विल लर्न द सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज a question. Alright. सवाल तो काफी आप लोग सुने होंगे, यहां तक कि एग्जाम में जो पेपर आप लोग को देता है आंसर के लिए, वो भी एक क्वेश्चन पेपर है. राइट. तो क्वेश्चन क्या है? ठीक है. जब कोई स्टेटमेंट में, जब कोई सेंटेंस में पूछता है, कोई सवाल करता है, और हम लोग वो सेंटेंस के एंड में एक क्वेश्चन मार्क देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अ क्वेश्चन. ठीक है. पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो सेकेंड पार्ट क्या है? क्वेश्चन. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. देखते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है. Example 1. Where are you going? Question mark. So, example 1 was, where are you going? ठीक है. तू, जब कोई नया आदमी आप लोगों से मिलता है, आपके घर विजिट करते हैं, ठीक है, या फिर टीचर नया क्लास में आप लोग प्रमोट होते हैं, तो टीचर पूछता है कि व्हेन इज योर बर्थडे? आपका जन्मदिन कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. थर्ड, हाउ टॉल आर यू? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. 4, व्हाट इज द टाइम by your
watch question mark. So these are the 4 examples. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं. वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क. कहां जा रहे हैं आप लोग कहां जा रहे हैं. ये क्वेश्चन मार्क के साथ जब खत्म होता है तो ये सवाल बन जाता है. ठीक है. 2. व्हेन इज योर बर्थडे. आपका जन्मदिन कब है क्वेश्चन मार्क. 3. हाउ टॉल आर यू. आप कितने लंबे हो क्वेश्चन मार्क. और 4th, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. आपके समय कितना हुआ तो घड़ी में. तो ये सब जितना भी चारों एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी में हम लोग एक सवाल पूछ रहे हैं. ठीक है. जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है और कुछ सवाल करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अ क्वेश्चन. ठीक है. सो आई थिंक इट इज क्लियर. फिर से बोल देते हैं. क्वेश्चन क्या है. जो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है और कोई सवाल पूछता है, उसी सेंटेंस को हम लोग कहते हैं अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां सभी चारों में कुछ ना कुछ सवाल किया गया है. फर्स्ट, वेयर आर यू गोइंग. आप कहां जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क. व्हेन इज योर बर्थडे. आपका जन्मदिन कब है. 3rd, हाउ टॉल आर यू. आप कितने लंबे हो क्वेश्चन मार्क. एंड 4th, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच क्वेश्चन मार्क. आपका घड़ी में कितना समय हो रहा है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर व्हाट इज अ क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इसका, सेंटेंसेस का. थर्ड पार्ट क्या बोला था मैंने. कमांड और रिक्वेस्ट. ठीक है. सो आई एम रबिंग दिस ऑफ एंड वी विल डू द थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट क्या है. थर्ड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, थर्ड पार्ट इज कमांड और रिक्वेस्ट. ठीक है. एक कमांड या फिर वो ऑर्डर भी हो सकता है. जब आप लोग घर बैठे हैं और मम्मी काम कर रही है, वो काफी बिजी हैं, तो कहता है कि बेटा लाओ तो मेरे को ये सब्जी दे दो फ्रिज से. पापा कहते हैं बेटा न्यूज़पेपर गिरा हुआ है गेट का बाहर, प्लीज मुझे ला दो. ठीक है. तो जब मम्मी कहती है कि बेटा मुझे ये सब्जी ला दो फ्रिज से, शी गिव्स एन ऑर्डर. ठीक है कि बेटा मेरे को ये बैंगन ला दो फ्रिज से, तो ये ऑर्डर है. जब पापा कहता है कि बेटा न्यूज़पेपर गेट का बाहर पड़ा हुआ है, प्लीज मुझे ला दोगे, तो ये एक रिक्वेस्ट है. जब हम लोग विनती करते हैं सेंटेंस में प्लीज, ठीक है, या फिर नर्म, हम लोग नर्म सुर पे जो है, नर्म टोन पे बात करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मुझे ला दो, प्लीज मुझे दिला दो, तो ये होता है रिक्वेस्ट. और जब हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं कि जाओ घर से भाग जाओ, गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये होता है एक कमांड. सो थर्ड पार्ट क्या है सेंटेंस का. एक कमांड या फिर एक रिक्वेस्ट. सो वही फिर से हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे. एग्जाम्पल से आपका जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है माइंड पे, वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल 1. हम लोग सभी क्लासरूम में जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि बाहर से बहुत शोर आ रहा है या फिर हवा चल रहा है जोर का, तो टीचर का पढ़ाने में दिक्कत होता है. ऑलराइट. सो द टीचर सेज क्लोज द डोर. ऑलराइट. व्हाट डज टीचर से. क्लोज द डोर. क्लोज द डोर, यहां पर एक
कमांड है, टीचर ऑर्डर देता है कि दरवाजा बंद कर दो, राइट, क्लोज द डोर। तो ये ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर, ठीक है, जो हम लोग कमांड बोलते हैं। एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो ये अभी सचमुच में एक पैर पे मत खड़ा हो जाओ, ये मैं बोल रहा हूं, ये एग्जाम्पल है। एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो ये होता है एक कमांड, एक ऑर्डर। फिर आता है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, शट अप एंड लिसन। चुप रहो और सुनो। ये भी एक ऑर्डर है, ये एक कमांड है, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल्स हम लोग देखे कमांड के, जिसमें हम लोग ऑर्डर करते हैं। जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो, दरवाजा खुला हुआ है और उनको लगता है कि दरवाजा बंद कर देना चाहिए, तो टीचर सेज क्लोज द डोर। शी और ही, दैट टीचर गिव्स एन ऑर्डर, ठीक है। तो वो एक कमांड है। सेकेंड हम लोग क्या एग्जाम्पल देखें, जब कोई बच्चे लोग, आप लोग बहुत कभी कभार आवाज करते हैं, शोर करते हैं और बदमाशी करते हैं, तो टीचर गुस्सा आ जाता है टीचर को और कहता है शट अप एंड लिसन। तो ये जो शट अप एंड लिसन जो है, ये एक कमांड है, ठीक है, इट्स एन ऑर्डर। थर्ड, जब आपको लगता है कि पापा के साथ कोई शॉपिंग मॉल जाए या फिर थोड़ा सा आइसक्रीम मिल जाता तो अच्छा है, या फिर कोई अच्छा मूवी आया हो, तो आप पापा से या मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज टेक मी टू द मॉल, प्लीज टेक मी टू द मॉल। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। शायद आपने पढ़ाई नहीं खत्म किया हो, इवनिंग का टाइम है, मन ही मन आपका मन पूरा ग्राउंड पे है, आपके सारे दोस्त तो आ गए हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं घर से, खिड़की से कि अरे सभी बाहर है, मुझे भी जाना है, खेलना है। सो यू रिक्वेस्ट योर पेरेंट, either your mummy or your daddy, and you ask them, you request them, please let me go out and play, ठीक है। प्ले यहां नहीं, सॉरी, प्ले यहां। एक सेंटेंस जब एक लाइन पे ना हो, तो जो वर्ड्स आपके बाकी हैं, वो जो जहां से हम लोग शुरू किए थे, उसी का नीचे से आप लोगों को नीचे से स्टार्ट करना होगा, फाइन। सो व्हेन यू रिक्वेस्ट समथिंग, जब आप विनती करते हो किसी चीज के लिए या फिर कहीं जाने के लिए, तो हम लोग प्लीज वर्ड यूज करते हैं। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट है, ऑलराइट। सो थर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या है, कमांड और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, कमांड। कमांड क्या है, जब हम लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग या फिर कोई, आप भी दे सकते हैं, ठीक है। जब ये होता है तो हम लोग एक इसे ऑर्डर देते हैं, क्लोज द डोर, शट अप एंड लिसन। ये हो गया दोनों एक ऑर्डर, एक कमांड। ये 3 और 4 क्या है, रिक्वेस्ट। प्लीज टेक मी टू द मॉल, प्लीज लेट मी गो आउट एंड प्ले। सो जो सेंटेंसेस में हम लोग आइदर कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कमांड और रिक्वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ऑलराइट। फर्स्ट
is a statement, second is the question, third command or request. स्टेटमेंट क्या है? जो कोई स्टेट करता है, जो सेंटेंस में कुछ स्टेट होता है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, जो कुछ बतलाता है. ही इज अ शॉर्ट गाय. कैसा लगता है वो? छोटा सा है. द टाइगर इज ब्यूटिफुल. कैसा है वो शेर? सुंदर है. ठीक है. द फ्लावर इज ब्यूटिफुल. कैसा है वो फूल? ब्यूटिफुल. सो ये स्टेटमेंट है. ये फूल के बारे में बोल रहा है. कैसा है? सुंदर है, बहुत सुंदर है. इट्स ब्यूटिफुल. सो दैट्स अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलता है जो कंफर्म है, श्योर है. तो इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट को एफर्मेटिव बोलते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंसेस. ठीक है. घबराने का कोई बात नहीं है. कुछ ऐसा फॉरेन लैंग्वेज नहीं है. जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है वो एक स्टेटमेंट है. क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? जब कोई सेंटेंसेस के एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क डालते हैं और उसी सेंटेंस में हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं. व्हेन वी आस्क समथिंग एंड वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड अ क्वेश्चन. क्वेश्चन को हम लोग इंटरोगेटिव भी कहते हैं. इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. जो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और वो सेंटेंस अगर आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन को कहते हैं. और लास्ट है कमांड और रिक्वेस्ट. मतलब ऑर्डर देते हैं या फिर विनती करते हैं. ठीक है. व्हेन वी ऑर्डर और रिक्वेस्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड अ कमांड और अ रिक्वेस्ट. ठीक है. इसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इंपेरेटिव, IMPERATIVE. ठीक है. तो ये रहा आपका सेंटेंसेस. ठीक है. पहले हम लोग क्या देखे? व्हाट इज अ सेंटेंस. सबसे पहला था सेंटेंस क्या है. क्या है एक सेंटेंस? व्हेन वी पुट वर्ड्स in their correct places that will mean something perfectly. ठीक है. जब कोई शब्द हम लोग सही जगह बिठाते हैं जिसका मीनिंग सही हो, तभी होता है एक सेंटेंस. वही सेंटेंस का तीनों भाग हो गए. एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन और तीसरा कमांड और रिक्वेस्ट. स्टेटमेंट को हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंफर्म हो, श्योर हो, उसी को दिखाता है स्टेटमेंट. जब कोई सवाल करते हैं एक सेंटेंस में और उसके एंड में हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एक क्वेश्चन. तीसरा, जब हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द कमांड और रिक्वेस्ट. कमांड और रिक्वेस्ट को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. सो दिस इज इट स्टूडेंट्स. गो थ्रू सेंटेंसेस. आपके नेक्स्ट क्लासेस में मैं एक्सरसाइज दूंगा. ठीक है. और पढ़ते रहिएगा. फॉलो माय वीडियोस. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है. आप प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर. ऑल राइट. स्टे वेल. थैंक यू.